Buddham Sharanam Gacchami, Sangam Sharanam Gacchami, Dharmam Sharanam Gacchami. Respected Prime Minister, Shraddhe Shri Narendra Modi ji, Honorable Governor of Uttar Pradesh, Srimati Anandaben Patel ji, respected Chief Minister, Uttar Pradesh, Shri Yogi Adityanath ji, most Venerable Vaskadwa Mahendra Vansa Mahanayake Tero, Head Monk of Vaskadwa Relax Temple, Sri Lanka, Cabinet Minister Sri Lanka, respected Sri Namal Rajapaksa, respected Minister, colleagues in the Government of India, Sri Kiran Rijiju ji, Sri Jyotiraditya Scindia ji, General V.K. Singh ji, Sri Arjun Ram Meghwal ji, Sri Meenakshi Lekhi ji, State Minister Tourism, Sri Nilakant ji Tiwari ji, Secretary General International Buddhist Confederation, Honorable Dr. Dhammapaya ji, eminent monks and honorable ambassadors from various countries, other invitees and officers of various departments of Government of India and Government of Uttar Pradesh and friends from media. My greetings on the occasion of Abhidhamma Day, a day that symbolizes the end of 3 months rainy retreat. We are gathered here today to not only facilitate this common heritage, but also to build stronger and deeper bonds among our countries. Our Prime Minister, Sri Narendra Modi ji, once said, I see Lord Buddha in the 21st century across national borders, across faith system, across political ideologies, playing the role of bridge to promote understanding, to counsel patience, and to enjoy us. The Prime Minister has taken it as his dharma and his personal responsibility to strengthen India's ties with Buddhist countries and building the strong relationship with these nations. Our Prime Minister traveled widely across the Buddhist countries to build this shared vision and common purpose. Several initiatives proposed by Prime Minister are multi-country collaborative initiatives that aim to foster to sense of partnership and brotherhood. India is the karma bhumi of the Lord Buddha, has a lot to offer to the world, and the many orders of monks that following the great science teachings. Most of the Lord Buddha's life, such as where the Lord Buddha attained nirvana, where the Lord Buddha gave his first sermon, where he attained Mahaparinirvana. All are here in India, and we welcome you here to the great land of Buddhism. We are making efforts to ensure that they have to pleasant and memorable experience while you are visiting these places. Under the direction of the Prime Minister Narendra Modi ji, the Ministry of Tourism, Government of India, developing the Buddhist circuits around the Kushinagar, Savasti and Kapilavastu as a part of the Swadeshi Darshan scheme, improve the infrastructure and facilities for the Buddhist pilgrims. Overall, several projects for the development of Buddhist circuits in Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Bihar, Gujarat and Andhra Pradesh are already nearing completion. The Ministry of Tourism has identified the Mahabodhi temple in Bodh Gaya
for holistic development as a iconic site in the country. The development of the Gaya railway station, the launch of Buddhist circuit special train, and the construction of the national and state highways will be further enhance the connectivity. Under the Prime Minister Narendra Modi ji, the Government of India ensuring a holistic and seamless experience through road, rail, air, and cultural connectivity between Buddhist destinations in India and abroad. We are also giving high priority for the development of Buddhist Tibetan institutes and the development of the special courses on Buddhism through various specialized institutions in India, such as a Central University of Tibetan Studies, Saranath, Central Institute of Buddhist Studies, Leh, Navanalanda Mahavihara, Nalanda, Bihar, Central Institute of Himalayan Studies, Arunachal Pradesh. All these initiatives will bring these Buddhist countries closer to the path of Lord Buddha. The message of the Lord Buddha is our common guiding principle, and this reflects our shared values and outlook. I once again welcome all those gathered here at August occasion. Thank you for all the organizations' contributions for this event arrangements. Namo Buddhaya, Namo Bharat, Jai Hind. కన్స్ట్రక్షన్ రంగాలలో దశాబ్దపు అనుభవంతో కస్టమర్ల మరియు శ్రేయోభిలాషుల మన్ననలను నమ్మకాన్ని గెలుపొందిన సంస్థ విఆర్ఆర్ కన్స్ట్రక్షన్స్. నాణ్యతకు నమ్మకానికి మారుపేరు విఆర్ఆర్ కన్స్ట్రక్షన్స్. ఇండిపెండెంట్ హౌసెస్, అపార్ట్మెంట్స్, విల్లాస్ అన్ని రకాల హంగులతో అలరించే అద్భుతమైన వెంచర్స్ తో పాటు అందరికీ అందుబాటు ధరలో సొంత ఇంటి కలను సాకారం చేసే నమ్మకమైన సంస్థ విఆర్ఆర్ కన్స్ట్రక్షన్స్. Please visit VRR Constructions, Varatex Plaza near Radhika Theatre, ECL X Road, Hyderabad. Call to 9100885552, 9100885559. भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश के गवर्नर आदरणीय आनंदीबेन पटेल जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, केंद्र सरकार में मेरे साथी मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, किशन रेड्डी जी, जनरल वीके सिंह जी, अर्जुन राम मेघवाल जी, मीनाक्षी लेखी जी, विजय कुमार दुबे जी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, रजनीकांत मणि त्रिपाठी जी, स्थानीय विधायक, और श्रीलंका से हमारा विशेष अतिथि मोस्ट वेनरेबल वस्कादुमा महिंदा रंसा महानायक थेरो, हेड monk of the Vaskadua Relics Temple, Sri Lanka, Honorable the Cabinet Minister of Sri Lanka, Namal Rajapaksa ji, Excellencies, the ambassadors of various countries to India, most venerable monks, nuns, and brothers and sisters. आज बहुत ही पवित्र दिवस है. आज हमारे जीवन काल में एक ऐसा समय है जो हम गर्व से कह सकते हैं कि भारतवर्ष ने दुनिया को बुद्ध भगवान को दिया है. आज हम सब खुशीनगर में एकत्रित हैं और इतने विक्षुण गुणों के साथ में कुछ समय हमको यहाँ बिताने का मौका मिला. आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज खुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भी उद्घाटन हुआ. हम कई सालों से सोचते थे कि मैं सिर्फ एक बौद्ध होने के नाते ही नहीं,
एक भारतीय होने के नाते हमेशा ये सोचते थे, जिस बुद्ध भगवान को दुनिया को दिया है इस पवित्र धरती में, इस कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एयरपोर्ट कब मिलेगा, और वो सपना आज पूरा हुआ है। आज का दिन अभिधम्म का दिवस तो है ही, और आज ही का दिन भगवान बुद्ध का तुषिता से प्रवचन देकर के धरती पे संकिसा में लौटने का भी दिन आज ही है। आज के दिन भगवान महर्षि वाल्मीकि जी का भी जन्म दिवस है। हर दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। दुनिया में सिर्फ बौद्ध ही नहीं, कई लोग इस जगह में आना चाहते हैं, और मैं कई दुनिया में जब भी गए, और खास करके एक बौद्ध को या एक बौद्ध भिक्षु या भिक्षुणियों को जब मिलता हूं, तब यह सुनने को मिलता है कि उसके जीवन काल में सबसे बड़ा इच्छा वो है भारत में एक बार जरूर आने का, और जिस धरती में बुद्ध भगवान चले हैं, जहां बुद्ध भगवान ने अपना संबोधि प्राप्त किया है, जहां महापरिनिर्वाण प्राप्त किया है, उस स्थान में जीवन काल में कम से कम एक बार आने का हर एक बौद्ध का इच्छा होते हैं। उस इच्छा को पूरा करने के लिए मैं समझता हूं कि भारतवर्ष का एक दायित्व है, हर भारतीय की जिम्मेदारी है कि दुनिया के लोग जब इस पवन धरती में आना चाहते हैं, उसको आने का सुविधा प्रदान करना, यह हमारा देश का एक कर्तव्य है। और मैं आज गर्व के साथ कह सकता हूं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी अपने सोच विचार के साथ भारत का कर्तव्य को पूरा करने का काम किया है, और कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया है। और आज के दिन जब हमारे देश में कई देशों के राजदूतों का यहां आगमन हो रहे हैं, श्रीलंका से बड़े प्रतिनिधिमंडल 12 सदस्य दल के सहित 123 प्रतिनिधियों वाला जो बड़ा मंडल इस पवित्र स्थल पे आया है, तो यह साबित होता है कि बुद्ध धर्म ने हम सबको एक सूत्र में बांध के रखा है। चाहे वो रशिया के अंदर में कालमख्या हो, या बुरकातिया हो, तुवा हो, या मंगोलिया हो, चीन हो, जापान हो, कोरिया हो, या दक्षिण पूर्व एशिया में वियतनाम हो, कंबोडिया हो, या लाओस हो, म्यांमार, थाईलैंड, सिंगापुर, या किसी भी देश में आज ये संदेश गया है कि अब बुद्ध जहां पैदा हुआ और जहां दुनिया को संदेश दिया, उस पवित्र धरती में पहुंचने के लिए हवाई मार्ग पूरा खुल गया है। चाहे बोध गया में हो, चाहे सारनाथ पहुंचने के लिए वाराणसी में एयरपोर्ट हो, चाहे कुशीनगर हो। अब यहां से कुशीनगर से लुम्बिनी भी 1.5 घंटे का रास्ता है। अब पूरे के पूरे रेल कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी के साथ आज हवाई कनेक्टिविटी हो गया है। मैं मेरे ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देते हुए पूरे उत्तर प्रदेश के और खास करके कुशीनगर के आसपास जितने भी यहां बसे हुए हैं, आप सबको मैं बधाई देना चाहता हूं कि ये बरसों का सपना आज साकार हुआ है, पूरा हुआ है। और मुझे भी इस पवित्र दिवस पर, इस खुशी के अवसर पर आपके बीच में आने का और कुछ पल बुद्ध भगवान का दर्शन करने का मौका मिला है। और जो श्रीलंका से बौद्ध अवशेष जो आए हैं, उसका दर्शन करने का मौका मिला है। मैं अपने आप को बहुत भाग्यवान समझता हूं। आप सबको आज के इस पवित्र दिवस पर साथ में मैं बुद्ध भगवान को प्रार्थना करना चाहता हूं कि हम सभी को आशीर्वाद दे, हमारे जिंदगी में खुशहाली आए और इस धरती में शांति बनाए रखे। इसी चंद शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत आभार माननीय केंद्रीय मंत्री श्री किरण रिजिजू का।
देवी सज्जनों, हम सब जानते हैं कि भारत और श्रीलंका के संबंध कितने प्राचीन और कितने घनिष्ठ रहे हैं और हैं, क्योंकि 3री सदी ईसा पूर्व में महान सम्राट अशोक की सुपुत्री संघमित्रा जब बोध गया से बोधि वृक्ष का एक अंश लेकर श्रीलंका की धरती पर पहुंची थी, और उसके बाद जिस तरह से बौद्ध धर्म वहां फला फूला, मानवता के कल्याण के लिए जिस तरह से उसने मार्ग प्रशस्त किया, वो दोनों देशों के बीच धार्मिक और सांस्कृतिक संबंधों की प्रगाढ़ता का एक और मजबूत आधार बना। आज श्रीलंका से आने वाली पहली फ्लाइट के साथ ही कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भी शुभारंभ हो गया है। ऑन दिस हिस्टोरिकल डे, ऑनरेबल मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका श्री नमल राजपक्षा is also gracing the occasion. I will request Honorable Minister Sir Mr. Rajpaksha for his address. సెరెనిటీ మోడల్ హై స్కూల్ విద్యార్థులకు అమ్మఒడి, సామాన్యులకు అందుబాటులో ఉన్న బడి సెరెనిటీ. మేడ్చల్ జిల్లాలో మేటిగా నిలిచి సాటిలేని ఫలితాలను సాధిస్తున్న నంబర్ 1 స్కూల్ సెరెనిటీ. మా ప్రత్యేకతలు ప్రతి విద్యార్థి పట్ల వ్యక్తిగత శ్రద్ధ, యాక్టివిటీ బేస్డ్ లెర్నింగ్ అండ్ డిజిటల్ క్లాస్ రూమ్స్, కంప్యూటర్ ల్యాబ్, 100% ఫలితాలు, స్పోర్ట్స్ అండ్ కల్చరల్ యాక్టివిటీస్, యోగా, అబాకస్ మరియు వేదిక్ మ్యాథ్స్ ఎడ్యుకేషన్. ప్లీజ్ విజిట్ Serenity Model High School, Nagaram. Admissions are in progress. Call 04027146899 and 04027148699. ගරුතර මහා සංඝරත්නයෙන් අවසරයි. His Excellency, the Prime Minister of India, Sri Narendra Modi, the Governor, His Excellency the Chief Minister, Union Ministers, Excellencies, distinguished guests, Aibowan, Vanakkam, Namaste. It gives me a great pleasure and honor, Your Excellency, to be on the inaugural international flight to Kushinagar International Airport along with Mahasangha on this auspicious day of Vappoya, where we believe Kushinagar, where we believe Mahaparinirvana of Lord Buddha took place. I recall it was Honorable Sri Narendra Modi, the Prime Minister of India, suggested to Prime Minister of Sri Lanka on a virtual bilateral summit that was held September 2020 that 100 members from the Buddhist clergy must join for the inaugural flight to Kushinagar, operated by Sri Lankan Airlines. Your Excellency, it's an honor we will cherish for years to come. Later today, our delegation, led by Venerable Mahasangha, will be visiting Varanasi, where many Sri Lankan Buddhist pilgrims visit annually. Incidentally, it happened to be the constituency of His Excellency, the Prime Minister Narendra Modi. Dear friends, Excellencies, the greatest gift that Sri Lanka has ever got from India is Buddhism. Ever since it arrived, the relationship between people to people in our countries have been growing strength to strength. Mahinda Rajapaksa, the Prime Minister of Sri Lanka, commissioned the translation of Bhagavad Gita into all languages that has been spoken, that we speak in Sri Lanka. We believe that this will not only benefit the Sri Lankans, but everyone all over the world. It symbolizes the role India has played in our history and the role India will play in the future. I would also like to thank Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi for extending a grant of $15 million to Sri Lanka to strengthen the Buddhist ties between our two nations. Your Excellency, the name Mahinda has played an important role in the history of our countries. The Mahinda I'm referring here is to your Prince Mahinda, who is the son of King Ashoka, venerably known in Sri Lanka as Mihindu Maharatan Vahanse, who brought the most treasured gift
Buddhism to Sri Lanka from India, ushering us a new culture and a peaceful way of life. Your Excellency, I believe today that you have created history once again. By opening the doors to Kushinagar, Buddhists not only from Sri Lanka, but from all over the world will be able to visit one of the most sacred sites in Buddhism. May you be blessed, Your Excellency, may you be blessed for this meritorious act, and may you be remembered forever. Thank you. శివగాయత్రి ఎంటర్ప్రైజెస్ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ ఫర్ సబ్మెర్సిబుల్ పంప్స్ మీ గృహ వ్యవసాయ పారిశ్రామిక నీటి అవసరాలకు స్పైరన్ మరియు కోర్సా సబ్మెర్సిబుల్ పంప్స్ మరియు డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ ఫర్ వాటర్ సాఫ్ట్నర్స్ హిమజల్ ఆర్వో ప్లస్ ఆల్కలైన్ వాటర్ ప్యూరిఫైర్స్ శివగాయత్రి ఎంటర్ప్రైజెస్. Thank you very much, sir. We are very grateful to the Honorable Minister and to the government of Sri Lanka. देवी सज्जनों, संस्कृति हमारी पहचान है, हमें जोड़ती है, दुनिया के दूसरे देशों से भी जोड़ती है. हमारे धर्म और दर्शन की जो परंपरा है, उसी ने भारत को विश्व गुरु के रूप में पहचान दी. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने उन्हीं मूल्यों को अपने व्यक्तित्व और कृतित्व के माध्यम से देश के सामने रखा, दुनिया के सामने रखा है. बुद्ध की दया, करुणा, प्रेम और सेवा का भाव, ये सब माननीय प्रधानमंत्री महोदय के जीवन की मौलिक प्रेरणा है. ऐसी प्रेरणा जिसमें पूरी मानवता का कल्याण समाहित है. कोविड जैसी महामारी के बीच भी दुनिया ने इन मूल्यों के प्रति उनकी निष्ठा को देखा है, अनुभव किया है और उसका लाभ लिया है. आज अपनी उस उपस्थिति से हम सबको माननीय प्रधानमंत्री महोदय अभिभूत कर रहे हैं. मैं निवेदन करूंगा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से कि वे आज के इस पावन अवसर पर अपने संबोधन के लिए पधारें. माननीय प्रधानमंत्री महोदय से पहले इस प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से मैं निवेदन करूंगा कि वे इस अवसर पर अपने संबोधन के लिए पधारें. स्वामी बोधानंद गोसेव आश्रमम सैथापुर. జ్యోతిష్యం వాస్తుశాస్త్రం మన పూర్వీకులు మనకిచ్చిన వరం. దుర్గాదేవి కాలభైరవ ఉపాసనతో వాక్సిద్ధి పొందిన శ్రీ శ్రీ బోధానందగిరి స్వామివారు మీకు ఎలాంటి సమస్యలున్నా, వాటిలో ముఖ్యంగా ధన నష్టం, ఆరోగ్య నష్టం, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, ప్రేమించుకున్న వారు దూరం అవడం, ఎన్ని సంబంధాలు వచ్చినా పెళ్లి ముడి పడకపోవడం, రోడ్డు ప్రమాదాలు, అప్పుల బాధలు, వ్యవసాయంలో నష్టాలు, పెద్దల మాట పిల్లలు వినకపోవడం, ఆరోగ్య శాంతి, గృహశాంతి, మనశ్శాంతి లేకపోవడం, ఇలాంటి సమస్యలు ఉన్నట్లయితే ఒక్కసారి స్వామీజీని కలవండి. మీ సమస్యలకు తగిన పరిష్కారాన్ని పొందండి. అంతేకాక అన్ని రకాల వ్యాధులకు గోపంచకవ్య మరియు మూలికా వైద్యం చేయబడును. నమ్మకంతో రండి, ఆయురారోగ్యాలతో వర్ధిల్లండి. మా అడ్రస్ స్వామి బోధానంద గోసేవ ఆశ్రమం, సైథాపూర్, వీరభద్ర స్వామి గుడి దగ్గర, యాదగిరిగుట్ట. సంప్రదించవలసిన నెంబర్ 9849213754 మరియు 9618034138. मंत्री जी, प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, केंद्रीय मंत्रीगण माननीय श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, माननीय श्री किरेन रिजिजू जी, जनरल वीके सिंह जी, श्री अर्जुन राम मेघवाल जी, श्रीमती मीनाक्षी लेखी जी, श्रीलंका से यहाँ पर पधारे माननीय मंत्री श्री राजपक्षे जी, आज के इस कार्यक्रम में विशेष रूप से पधारे श्रीलंका से इस उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे पूज्य भिक्षुगण, सभी माननीय राजदूतगण, श्रीलंका और भारत के भी कोने कोने से उपस्थित
सभी उपस्थित पूज्य संत और भिक्षुगण, तथागत भगवान बुद्ध की इस महापरिनिर्वाण स्थली पर मैं भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का और आज के इस अभिधम दिवस पर उपस्थित सभी गणमान्य अतिथियों का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज का ये दिवस हम सब के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण दिवस है। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भगवान बुद्ध की मैत्री और करुणा का संदेश देता रहा है। आज एयर कनेक्टिविटी के माध्यम से श्रीलंका से पहुंची पहली फ्लाइट के माध्यम से इस अंतर्राष्ट्रीय उड़ान ने भगवान बुद्ध की इस मैत्री और करुणा को अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पर एक बार पुनः स्थापित करने की भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उन संकल्पों के साथ आगे बढ़ाने का कार्य किया है। मैं इस अवसर पर उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से, क्योंकि भगवान बुद्ध के से जुड़े हुए सर्वाधिक स्थान उत्तर प्रदेश में हैं और ये मान्यता है कि आज ही के दिन इस अभिधम दिवस के अवसर पर संकिसा में भगवान बुद्ध का विशेष अवतरण भी वहां पर माना जाता है। और इस अवसर पर श्रीलंका से आया हुआ यह उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल आज इस बात का साक्षी बन रहा है। मैं उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से कुशीनगर को इस अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के उपलब्ध कराने और इस अवसर पर श्रीलंका से इस पहली उड़ान के साथ इस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लोकार्पण कार्यक्रम के अवसर पर उपस्थित सभी आगंतुक अतिथियों का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। అనురాగానికి అమ్మ ఆదర్శం, ఆరోగ్యానికి శ్రీ సాయి హోమియో స్టోర్స్ అండ్ క్లినిక్. అనుభవం, అర్హత, అంకిత భావం కల డాక్టర్లచే చికిత్స. అన్ని రకాల ఆరోగ్య సమస్యలకు నమ్మకమైన ఎంపిక శ్రీ సాయి హోమియో స్టోర్స్ అండ్ క్లినిక్. డయాబెటిస్, కీళ్ల నొప్పులు, సయాటికా, వెన్నుముక సమస్యలు, థైరాయిడ్, నిద్రలేమి, మానసిక సమస్యలు, ఋతు సమస్యలు, అన్ని రకాల దీర్ఘకాలిక వ్యాధులకు ప్రత్యేక హోమియో వైద్యం. అందరికీ అందుబాటులో అంతర్జాతీయ హోమియో వైద్యం శ్రీ సాయి హోమియో స్టోర్స్ అండ్ క్లినిక్. మీ ఆరోగ్య సమస్య ఏదైనా ఇప్పుడు పరిష్కారం సాధ్యం. సైడ్ ఎఫెక్ట్ లేని వైద్యంతో సంపూర్ణ ఆరోగ్యం కొరకు సంప్రదించండి శ్రీ సాయి హోమియో క్లినిక్ అండ్ స్టోర్స్, భవానీ నగర్, అంబేద్కర్ నగర్ రోడ్, ఓల్డ్ అల్వాల్, సికింద్రాబాద్. సంప్రదించాల్సిన ఫోన్ నంబర్స్ 9000751751 మరియు 9000422525. नमो बुद्धाय। इस पवित्र मंगल कार्यक्रम में उपस्थित उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, कैबिनेट में मेरे सहयोगी श्री जी किशन रेड्डी जी, किरण रिजिजू जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, श्रीलंका से कुशीनगर पधारे श्रीलंका सरकार में कैबिनेट मंत्री श्रीमान नमल राजपक्षा जी, श्रीलंका से आए अति पूजनीय हमारे अन्य अतिथिगण, म्यांमार, वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड, लाओ पीडीआर, भूटान और दक्षिण कोरिया के भारत में एक्सेलेंसी एम्बेसडर्स, श्रीलंका, मंगोलिया, जापान, सिंगापुर, नेपाल और अन्य देशों के वरिष्ठ राजनयिक,
सभी सम्मानित भिक्षुगण और भगवान बुद्ध के सभी अनुयायी साथियों, अश्विन महीने की पूर्णिमा का ये पवित्र दिन कुशीनगर की पवित्र भूमि और अपने शरीर अंशों रैलिस के रूप में भगवान बुद्ध की साक्षात उपस्थिति, भगवान बुद्ध की कृपा से आज के दिन कई अलौकिक संगत, कई अलौकिक संयोग एक साथ प्रकट हो रहे हैं। अभी यहां आने से पहले मुझे कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लोकार्पण का सौभाग्य मिला है। कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के जरिए पूरी दुनिया से करोड़ों बुद्ध अनुयायियों को यहां आने का अवसर मिलेगा, उनकी यात्रा आसान होगी। इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर श्रीलंका से पहुंची पहली फ्लाइट से अति पूजनीय महासंघ, सम्मानित भिक्षुओं और साथियों ने कुशीनगर में पदार्पण किया है। आप सभी की उपस्थिति भारत और श्रीलंका की हजारों साल पुरानी आध्यात्मिक, धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। साथियों, हम सभी जानते हैं कि श्रीलंका में बौद्ध धर्म का संदेश सबसे पहले भारत से सम्राट अशोक के पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा लेकर गए थे। माना जाता है कि आज के ही दिन अरहत महिंदा ने वापस आकर अपने पिता को बताया था कि श्रीलंका ने बुद्ध का संदेश कितनी ऊर्जा से अंगीकार किया है। इस समाचार ने यह विश्वास बढ़ाया था कि बुद्ध का संदेश पूरे विश्व के लिए है, बुद्ध का धम्म मानवता के लिए है। इसलिए आज का ये दिन हम सभी देशों के सदियों पुराने सांस्कृतिक संबंधों को नई ऊर्जा देने का भी दिन है। मैं आप सभी को बधाई देता हूं कि आप आज भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण स्थल पर उनके सामने उपस्थित हैं। मैं श्रीलंका और दूसरे सभी देशों से आए हमारे सम्मानित अतिथिगणों का भी हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे जो अति पूजनीय महासंघ हमें आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित हैं, उन्हें भी मैं आदरपूर्वक नमन करता हूं। आपने हम सबको भगवान बुद्ध के अवशेष स्वरूप रेलिक्स का दर्शन का सौभाग्य दिया है। यहां कुशीनगर के इस कार्यक्रम के बाद आप मेरे संसदीय क्षेत्र वाराणसी भी जा रहे हैं। आपकी पवित्र चरण रज वहां भी पड़ेगी, वहां भी सौभाग्य लेकर आएगी। साथियों, मैं आज इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन के सभी सदस्यों को भी बधाई देता हूं। आप जिस तरह आधुनिक विश्व में भगवान बुद्ध के संदेश को विस्तार दे रहे हैं, वह वाकई बहुत सराहनीय है। आज इस अवसर पर मैं अपने पुराने सहयोगी श्री शक्ति सिन्हा जी को भी याद कर रहा हूं। इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन के डीजी इसके तौर पर कार्य कर रहे शक्ति सिन्हा जी का कुछ दिन पहले ही स्वर्गवास हुआ है। भगवान बुद्ध में उनकी आस्था, उनका समर्पण हम सब के लिए एक प्रेरणा है। साथियों, आप सभी जानते हैं आज एक और महत्वपूर्ण अवसर है, भगवान बुद्ध के तुलसीता से वापस धरती पर आने का। इसलिए
आश्विन पूर्णिमा को आज हमारे भिक्षुगण अपने 3 महीने का वर्षावास भी पूरा करते हैं। आज मुझे भी वर्षावास के उपरांत संघ भिक्षुओं को चीवर दान का सौभाग्य मिला है। भगवान बुद्ध का ये बोध अद्भुत है, जिसने ऐसी परंपराओं को जन्म दिया। बरसात के महीनों में हमारी प्रकृति, हमारे आसपास के पेड़ पौधे नया जीवन ले रहे होते हैं। जीव मात्र के प्रति अहिंसा का संकल्प और पौधों में भी परमात्मा देखने का भाव, बुद्ध का ये संदेश इतना जीवंत है कि आज भी ఫనేసియా మెరిడియన్ హాస్పిటల్ ప్రతి సామాన్యుడికి అందుబాటులో అంతర్జాతీయ వైద్య ప్రమాణాలతో వైద్యం, 24 గంటల అంబులెన్స్ సర్వీసుతో పాటు అత్యవసర సేవలతో ఏర్పాటైన చికిత్సా విభాగం. మా దగ్గర గుండె సంబంధిత, మూత్రపిండ, కాలేయ, కంటి జబ్బులకు, మోకాళ్ల శస్త్రచికిత్సతో పాటు కోవిడ్-19, బ్లాక్ ఫంగస్ వంటి వైరస్లకు, అన్ని రకాల ఆరోగ్య సమస్యలకు నమ్మకమైన అత్యాధునిక వైద్య చికిత్సను అందిస్తున్న హాస్పిటల్ ఫనేసియా మెరిడియన్ హాస్పిటల్. మీ ఆరోగ్య సమస్య ఏదైనా ఇప్పుడు పరిష్కారం సాధ్యం. సంపూర్ణ ఆరోగ్యం కోసం సంప్రదించండి ఫనేసియా మెరిడియన్ హాస్పిటల్, ఆపోజిట్ బీరంగూడ కమాన్, ఆర్సీపురం, సంగారెడ్డి డిస్ట్రిక్ట్ 502032. సంప్రదించవలసిన ఫోన్ నెంబర్ 08455241777 మరియు 7893757770. हमारे भिक्षु उसे वैसे ही जी रहे हैं जो साधक हमेशा क्रियाशील रहते हैं, सदैव गतिशील रहते हैं। वो इन 3 महीनों में ठहर जाते हैं ताकि कहीं कोई अंकुरित होता हुआ कोई बीज कुचल न जाए, निखरती हुई प्रकृति में अवरोध न आ जाए। ये वर्षावास न केवल बाहर की प्रकृति को प्रस्फुटित करता है, बल्कि हमारे अंदर की प्रकृति को भी संशोधित करने का अवसर देता है। साथियों, धम्म का निर्देश है, यथापि रुचिरम पुप्खम मणमंतम सुगंधकम एवं सुभाषिता वाचा सफला होती कुब्बतो। अर्थात अच्छी वाणी और अच्छे विचारों का अगर उतनी ही निष्ठा से आचरण किया जाए तो उसका परिणाम वैसा ही होता है जैसा सुगंध के साथ फूल, क्योंकि बिना आचरण के अच्छी से अच्छी बात बिना सुगंध के फूल की तरह ही होती है। दुनिया में जहां जहां भी बुद्ध के विचारों को सही मायने में आत्मसात किया गया है, वहां कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी प्रगति के रास्ते बने हैं। बुद्ध इसलिए ही वैश्विक है क्योंकि बुद्ध अपने भीतर से शुरुआत करने के लिए कहते हैं। भगवान बुद्ध का बुद्धत्व है सेंस ऑफ अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, अर्थात हमारे आसपास, हमारे ब्रह्मांड में जो कुछ भी हो रहा है, हम उसे खुद से जोड़कर देखते हैं, उसकी जिम्मेदारी खुद लेते हैं। जो घटित हो रहा है उसमें अगर हम अपना सकारात्मक प्रयास जोड़ेंगे तो हम सृजन को गति देंगे। आज जब दुनिया पर्यावरण संरक्षण की बात करती है, क्लाइमेट चेंज की चिंता जाहिर करती है, तो उसके साथ अनेक सवाल उठ खड़े होते हैं। लेकिन अगर हम बुद्ध के संदेश को अपना लेते हैं तो
किसको करना है, इसकी जगह क्या करना है, इसका मार्ग अपने आप दिखने लगता है। साथियों, हजारों साल पहले भगवान बुद्ध जब इस धरती पर थे तो आज जैसी व्यवस्थाएं नहीं थी, लेकिन फिर भी बुद्ध विश्व के करोड़ों करोड़ लोगों तक पहुंच गए, उनके अंतर्मन से जुड़ गए। मैंने अलग अलग देशों में बौद्ध धर्म से जुड़े मंदिरों, विहारों में ये साक्षात अनुभव किया है। मैंने देखा है कैंडी से क्योटो तक, हेनोई से हम्बनटोटा तक भगवान बुद्ध अपने विचारों के जरिए मठों, अवशेषों और संस्कृति के जरिए हर जगह है। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं कैंडी में श्री डलाडा मैलागोवा वहां दर्शन करने पहुंचा था। सिंगापुर में उनके दंत अवशेष के मैंने दर्शन किए और क्योटो में किनकाकुजी जाने का अवसर भी मुझे मिला। इसी तरह साउथ ईस्ट कंट्रीज के भिक्षुओं का आशीर्वाद भी मुझे मिलता रहा है। अलग अलग देश, अलग अलग परिवेश, लेकिन मानवता की आत्मा में बसे बुद्ध सबको जोड़ रहे हैं। भारत ने भगवान बुद्ध की इस सीख को अपने विकास यात्रा का हिस्सा बनाया है, उसे अंगीकार किया है। हमने ज्ञान को, महान संदेशों को, महान आत्माओं के विचारों को बांधने में कभी भरोसा नहीं किया है। उसको बांध के रखना ये हमारी सोच नहीं है। हमने जो कुछ भी हमारा था उसे मानवता के लिए मम भाव से अर्पित किया है। इसलिए अहिंसा, दया, करुणा ऐसे मानवीय मूल्य आज भी उतनी ही सहजता से भारत के अंतर्मन में रचे बसे हैं। इसलिए बुद्ध आज भी भारत के संविधान की प्रेरणा है। बुद्ध का धम्म चक्र भारत के तिरंगे पर विराजमान होकर हमें गति दे रहा है। आज भी भारत की संसद में कोई जाता है तो इस मंत्र पर नजर जरूर पड़ती है, धर्म चक्र प्रवर्तनाय। साथियों, आमतौर पर ये भी धारणा रहती है कि बौद्ध धर्म का प्रभाव भारत में मुख्य रूप से पूरब में ही ज्यादा रहा, लेकिन इतिहास को बारीकी से देखें तो हम पाते हैं कि बुद्ध ने जितना पूरब को प्रभावित किया है उतना ही पश्चिम और दक्षिण पर भी उनका प्रभाव है। गुजरात का वडनगर, जो मेरा जन्म स्थान भी है, वो अतीत में बौद्ध धर्म से जुड़ा एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। अभी तक हम ह्वेनसांग के उद्धरणों के जरिए ही इस इतिहास को जानते थे, लेकिन अब तो वडनगर में पुरातात्विक मठ और स्तूप भी एक्सकेवेशन में मिल चुके हैं। गुजरात का ये अतीत इस बात का प्रमाण है कि बुद्ध दिशाओं और सीमाओं से परे थे। गुजरात की धरती पर जन्मे महात्मा गांधी तो बुद्ध के सत्य और अहिंसा के संदेशों के आधुनिक संवाहक रहे हैं। साथियों, आज भारत अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इस अमृत महोत्सव में हम अपने भविष्य के लिए, मानवता के भविष्य के लिए संकल्प ले रहे हैं। हमारे इन अमृत संकल्पों के केंद्र में भगवान बुद्ध का वो संदेश है जो कहता है, अपमादो अमत पदम, पमादो मच्चुनो पदम, अपमत्ता न मियंती, ये पमता यथा मता। यानी प्रमाद न करना अमृत पद है और प्रमाद ही मृत्यु है। इसलिए आज भारत
नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहा है, पूरे विश्व को साथ लेकर आगे चल रहा है। भगवान बुद्ध ने कहा था, अप्पदीपो भव, यानी अपने दीपक स्वयं बनो। जब व्यक्ति स्वयं प्रकाशित होता है तभी वह संस्कार को भी प्रकाश देता है। यही भारत के लिए आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा है। यही वो प्रेरणा है जो हमें दुनिया के हर देश के प्रगति में सहभागी बनाने की ताकत देती है। अपने इसी विचार को आज भारत सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ आगे बढ़ रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि भगवान बुद्ध के इन विचारों पर चलते हुए हम सब एक साथ मिलकर मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करेंगे। इसी कामना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भवतु सब्ब मंगलम। नमो बुद्धाय। बहुत बहुत आभार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का उनके इस प्रेरक संबोधन के लिए और यहां उनकी गरिमामय उपस्थिति के लिए। देवी सज्जनों, माननीय प्रधानमंत्री महोदय के इस संबोधन के साथ ही आज का अभिधम्म दिवस के अवसर पर आयोजित यहां का कार्यक्रम संपन्न होता है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय का व्यक्तित्व, उनका कृतित्व, आपका चिंतन हम सबको यूं ही प्रेरित करता रहे, हमारा मार्गदर्शन करता रहे, यही ईश्वर से प्रार्थना है। एक बार आप सबके करतल ध्वनि से माननीय प्रधानमंत्री महोदय का आभार जरूर हम व्यक्त करना चाहेंगे। आप सब अपनी तालियों के साथ करतल ध्वनि के साथ आभार व्यक्त करें माननीय प्रधानमंत्री महोदय का। కన్స్ట్రక్షన్ రంగాలలో దశాబ్దపు అనుభవంతో కస్టమర్ల మరియు శ్రేయోభిలాషుల మన్ననలను నమ్మకాన్ని గెలుపొందిన సంస్థ విఆర్ఆర్ కన్స్ట్రక్షన్స్. నాణ్యతకు నమ్మకానికి మారుపేరు విఆర్ఆర్ కన్స్ట్రక్షన్స్. ఇండిపెండెంట్ హౌసెస్, అపార్ట్మెంట్స్, విల్లాస్ అన్ని రకాల హంగులతో అలరించే అద్భుతమైన వెంచర్స్ తో పాటు అందరికీ అందుబాటు ధరలో సొంత ఇంటి కలను సాకారం చేసే నమ్మకమైన సంస్థ విఆర్ఆర్ కన్స్ట్రక్షన్స్. Please visit VRR Constructions, Varatex Plaza near Radhika Theatre, ECL X Road, Hyderabad. Call to 9100885551 9100885559.